ویلکم بیک. بہت بہت خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے, لاہور رنگ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. ہمیں جوائن کیا ہے عید کے بعد, عید کے رنگوں میں مزید ان کو نکھارنے کے لیے بہت سے آنریبل اور ریسپیکٹفل اور ٹیلنٹڈ لوگوں نے, جن کا نام کچھ زیادہ انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں, جناب جواد وسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, شکریہ, عید مبارک, خیر مبارک سر, بکرا مبارک. خیر مبارک سر. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سرائکی سنگر جناب واجد بغدادی صاحب نے, جو اپنے علاقے کی آواز ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے. اچھا ہے, یہ اچھا لگتا ہے جس طرح فنکار ہیں اپنی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں, اور اسے سفیر کہا جاتا ہے. جواد صاحب کے جس طرح ہم تعارف جانتے ہیں, نہ صرف تھیٹر کو, ٹیلی ویژن کو بڑی باریکی سے انہوں نے جانچا ہے, بھانپا ہے, اس میں کام کیا ہے, اور اپنی پرفارمنس سے دنیا کو پاکستان کا برانڈ بنے ہیں, اپنا گرویدہ بنا. اور ان کے مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا, ظاہری خد و خال ایک بڑے ہی مدبرانہ انداز میں براجمان ہے, لیکن تھیٹر میں ہم نے مشن کو چھلانگے لگاتے اور انرجی کے ساتھ کام کرتے دیکھا. تیرا مطلب جڑا فنکار ہوتا مدبر نہیں ہوتا. یہ دیکھنے پہلا حملہ مجھ پر ہو چکا ہے, یہ میں جی پہلے آپ سے معافی ہے, اور کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح گپ شپ رکھیں گے. میں پہلے ذرا بنا جائے نا بہتر رہتا ہے. واجد صاحب ہے جس طرح اب یہ اپنے علاقے کی آواز ہیں, پیار کرنے والے ہیں, اور اپنی گائکی میں محو رہتے ہیں, اپنی ایک دنیا آباد ہے. اب ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو فن مقرری, شاعری, اس کی باریک بینیوں سے واقف ہے. اچھا اداکار بھی ہیں, یعنی کوئی کریکٹر ایکٹنگ بھی کرنے کو کہا جائے تو وہ بھی کرتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی ٹیلنٹڈ, اور امتیاز کوکب جیسے امتیازی شخصیت ہے, نام بھی ویسا ہی ہے, امتیاز کوکب. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سب کو عید مبارک ہے. اور جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے دنیا بھر میں, خاص طور پر پاکستان میں, میں ان کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں. یہ محبتیں اور یہ مبارکبادیں آپ سب سمیٹیے. ایک اور گیسٹ ہے ہمارے پاس, گائک بہت عمدہ, اداکارہ بھی بہت عمدہ, اور لوگ انہیں جانتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اینی طاہرہ کے نام سے. کیسی ہیں؟ السلام علیکم جی. میری طرف سے تمام سیٹ پہ بیٹھے جتنے لوگ ہیں, آؤٹ آف دا کیمرہ ہیں, دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, سب کو عید مبارک. خیر مبارک. اسی طرح رونقیں آباد رکھے. جواد صاحب, یہ جس طرح ایک آپ نے پوری بیٹ پر انداز اپنا دیا ہے, کس طرح عید گزر رہی ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں, چونکہ کورونا بھی اب آڑے آ چکا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھو, یہ جو ہوتی ہے نا عید کی خوشیاں, جی یاد رکھو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ خوشی کرو. بے شک. اب اس میں یہ کہ جی یہ ہوتا رہا, وہ ہوتا رہا, انجوائے, تو اس طرح کہ زندگی نہیں خوشی کر سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے بھی, آج کے دن خوشی, جو ہم نے ہر کام اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ حالات وہی بہتر ہے. تو خوشی کا دن ہے, خوشی ہے, بکرے ہو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, گوشت, کلیجیاں بھنی جا رہی ہیں, کباب ہو رہے ہیں. ویسے جواد صاحب, جس طرح چونکہ دوسرا دن ہے, اور پہلا دن تو میزبان بن کر گزرتا ہے, دوسرا دن مہمان بن کر گزرتا ہے. آپ نے کوئی پلان کیا کس کے مہمان بنیں گے, کون کون سے کھابے اڑائیں گے؟ آپ ہی کہ ٹینشن نہ لیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آرڈر وارڈر کر رہے ہو. یا اللہ عزت رکھی. جی دیکھو, ظاہر ہے کہ ٹرو والے دن ہم سب مہمان ہمارے بھی آنے ہوتے ہیں نا, جہاں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاں جائیں گے, وہ باہر نکلتا ہے, وہ دروازے پہ آتے ہیں کہ ہم تو آپ, ارے میں تو آ رہا تھا, نہیں ہم تو آ گئے, آ جاؤ. جی ایسے ہی. تو میرا خیال آدھا دن ایسے گزر جاتا ہے. پھر بچ بچا کے پہلے تالے لگوانے ہیں باہر کے, پھر چور دروازے سے نکلنا ہے. اسٹریٹجی ہے. ایسے نہیں ہوتا. پھر گاڑی میں نہیں جانا, رکشے میں جانا, تاکہ گاڑیاں ادھر ہی کھڑی رہیں کہ گڈی سے کھڑی ہے, گئے کدھر. شک میں ڈال. یہ جواد صاحب آپ ہمیں بھی طریقے سکھا رہے ہیں. نہیں تو گزارنے کے حوالے سے بات کریں. سر آپ بتائیں اپنا عید کیسے گزارتے ہیں, اور لاسٹ عید کے مقابلے میں جس طرح کی گزارتے آئے ہیں, یہ والی کیسے گزری آپ؟ جیسے جواد وسیم صاحب, جو کہ بڑے ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ان کے پاس, ان کے سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہے. عید الاضحیٰ اصل میں تو یہ سنت ابراہیمی ہے, اور ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری عیدین ہے, وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے, ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے. اور
कहते हैं, सुना भी है, पढ़ा भी है और महसूस भी किया है कि जो गम है, असल दोस्त इंसान का ये है, जो गम है, जो अपने साथ लिए फिरता है, असल में उसका असासा वही है। लेकिन जो खुशी है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि उसामा जी के जो लोग परेशान रहते हैं, परेशान, वो माजी में रहते हैं। असल में वो माजी में रहते हैं। और जो फिक्रमंद रहते हैं वो मुस्तकबिल की तलाश में। और जो खुश हैं जी, तो उसने कहा कि वो जो हाल में है लोग। बिल्कुल, ये बहुत उम्दा बात है कि हाल में रहें, माजी में ना रहें। बगदादी साहब, आप माजी में तो नहीं। साहब से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जरूर। आपकी बात जो आपने कहा ना कि दुख साथ रहते हैं, जी जी बिल्कुल सर। तो फरमाते ना कि दुख सदा सुख गा बका। वाह वाह वाह। दुख सदा सुख गा बका, दुखा तो सुख वारे, वाह वाह दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। जवाब वसीम साहब, अख खोली ते गमा दे जाल वेखे, उतों हंड दे जिंदड़ी नाल वेखे, एक दिन सी हिजर दा साल वर्गा, असी दिन नहीं सालां दे साल वेखे, ते मैं नचिया जग दे सुख पारों, सद बुले नु मेरी धमाल वेखे। वाह, ये मुझे ऐसे जवाब साहब अब आपने कोई शेर ये मुझे ऐसे बैतबाजी की कैफियत महसूस हो रही है। मैं बगदादी साहब बड़े संजीदा बैठे हैं, उनको देखें, आप चेहरा देखिए एकदम, मैं कितने बगदादी संजीदा। साहब आपकी की बातें बारी सुन अब रहा नहीं हूँ। लूंगा। अच्छा जी, दसो जी बात नहीं उधर आप बड़े आप संजीदा बैठे हैं, क्यों ईद से आप खुश नहीं है या क्या ऐसी कैफियत है? बकरा चोरी हो गया। सबसे पहले मैं तमाम मुस्लिम को हाँ, मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हजारें खुशियां अता फरमाए आमीन सुबह। और ऐसी खुशियां नसीब करे। हमेशा हमारे पाकिस्तान पर जी, अल्लाह करीम रहम और करे, अमन अमान करम करे, अमन अमान रहे। अब एनी जी, आपको जिस तरह हमने एनर्जेटिक अंदाज में आते हुए देखा है, सबसे आपने मुलाकात की है, फिर बैठी है, फिर कुछ घरेलू गपशप भी होती है, जो कि फनकारों के आपस में मरासिम होते हैं, घर की बातें भी होती हैं, यार आज घर में इस तरह और मामला हैं, वो ठीक नहीं, वो ठीक है, जो भी है। अब आप जब खाना बनाती है, चूंकि ईद का दिन है और पकवान भी बनाने होते हैं, तो तब भी ऐसी एनर्जी ही होती है आपकी, बनाते हुए, खाते हुए नहीं? किसने कहा मैं खाना बना रही कैबिन से पूछते नहीं कि ये खाना पकाती भी है कि नहीं पकाती। आप सीधा करते भी खाना खाने वक्त भी आपकी ऐसी एनर्जी होती है। तो वही ना, जिसने अपनी ईद खराब करनी वो खाना खा ले मेरे हाथ से बना हुआ, तो फिर मेरा जुमा ओश पोश। फिर भी इंसान कोई एक डिश होती है या कुछ डिश होती है, कुछ होता है अंडा उबालने के अलावा। सैलेड लो यार, किस लिए सलाद बनाओ अच्छी तरीके से, उसको खा लो, क्या इतनी जरूरत है तरद्दुद करने की ये यार। पानी बड़ा अच्छा उबाल लेते हैं। ओह, मुश्किल है, देखें, ये भी देखा जाए, चूल्हा जलाना, सलाद बड़ी अच्छी खा लेते अच्छा जवाब साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं, आपको क्या क्या पसंद है खाने में? ये गोश्त की क्योंकि ईद है जी, अकसाम बता दें मुझे। कि मुझे अपनी मेरी वालदा एकदम याद है कि वो स्टू बड़ा अच्छा बनाती थी, वाह, और पावे बड़े अच्छे बनाती थी, फिर चने वाले चावल ऐसी बनाती थी, फिर वो वेजिटेबल पुलाव बनाती थी, फिर वो जो गुड़ वाले चावलों में जो मूंगफली और बादाम और मेवे और मुरब्बे पता नहीं क्या क्या वो बनाती थी। बकरे के बाद जरूरी है सर, ये वाली हर तरह चीज के डिश तो बहुत जरूरी है। तो फिर वो जो गोश्त भूनती थी, फिर रात को जो कबाब आजकल भी बने, लेकिन मुझे वो एकदम मां याद आती। हस्ती ऐसी ईद है ना, तो उनके हाथ के खाने अल्लाह अजीबो गरीब, वो उन एक तो हर एक की माँ के हाथ में लज्जत जायका होती है, बेशक, इसमें कोई नो डाउट। तो मुझे भी अपनी माँ के हाथ के खाने, तो किस्म किस्म के कबाब और पता नहीं वो, यानी अगले दिन पेट लाजमी खराब होता था। वो कहते हैं बिस्यार खोरी गलत है, और ना आप भी इज्तनाब कीजिए, ज्यादा ना खाइए यार, आगे भी ये गोश्त खा सकते हैं आप। कौकब साहब, आप क्या पसंद करते हैं और बनाते हैं? कुछ कुकिंग का शौक? नहीं देखें, मैंने आज तक जैसे आमलेट है या इस तरह की चीजें तो मैं बना लेता हूँ, खाना वाना मैंने कभी नहीं बनाया। ओके। लेकिन ये है कि शुरू से ही
खाने का शौक है। यानी सही आप इकट्ठे बैठे हैं दोनों। मेरे मरहूम वालिद जो थे, जी। डिस्पाइट इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी कि हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, ठीक है। इवन आई हैवंट बाइसिकल, तो लेकिन वो ऐसे शख्सियत थे कि बहुत गोश्त लाते थे घर में और छोटा गोश्त लाते थे, और हमारा इतना टेस्ट डेवलप हो गया है कि अब कसाब भी हमें कसाब समझने लग गया है कि अगर वो गलत बोटी बना रहा है तो मैं उसे कहता हूँ कि यार तुमने की कीता है यार, तो मैं अब पहले दिन कुर्बानी से भी इज्तनाब करता हूँ क्योंकि कसाब सही मिलते नहीं है। हाँ। तो मैं प्रोफेशनल कसाब से बनवाता हूँ और फिर उसी तरह खाते हैं। लेकिन ईद में मुझे जो है वो जो बिल्कुल बेहतरीन जो गोश्त की एक कह लें आइटम है, हाँ जी। वो मुझे उबला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। अच्छा, तो उसमें फिर यखनी भी पीता हूँ और दो बोटियां वो खाते रहते नमक हैं। गोश्त उसको हम कह सकते हैं, जी, नमक गोश्त जिसे कहते हैं। नमकीन गोश्त। नमकीन भी ज्यादा नमकीन नहीं होता, गोश्त। खैर आप कह सकते हैं। यानी वो उस लेकिन तरह का एक- उबला हुआ गोश्त जो है ये जरा फिर ये डाइजेस्ट भी हो जाता है और फिर वो डाइट थोड़ा-थोड़ा कॉन्शियस सा- लो है ना, डाइट हाँ, ये कॉन्शियस डाइट हैं, कॉन्शियस यानी आपने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है गोश्त का। ये सब। ये तो और खैर बजाय इन्होंने तो कहा बाकी है। अब जो हमने तो जी ये गर्दन का गोश्त मुझे अच्छा लगता है, ओहो। पुट भी अच्छी लगती है, मैं सीने का अपना है। हम तो गोश्त के लिए गर्दन कटवा देते हैं। और वो जो सीने का गोश्त है ना, ये आपके लिए भी है और हमारे जो नाजरीन उनके लिए भी है। अगर आप इस बकरे के सीने का गोश्त का वो बनाएंगे ना पुलाव, तो उससे ज्यादा अच्छी डिश नहीं है। अरे, बकरे के हवाले से। एडवाइस भी मिल गई है खाने के जी, हवाले से जी, भी, बहुत। बनाने के हवाले से भी। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने सुना, हमें सुन के बहुत मजा आया। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक माशाल्लाह आपने इतनी ईद सेलिब्रेट की हैं, उनमें से कौन सी कोई एक ऐसी ईद है जो आपको अभी तक याद है या आप जो चाहें कि वो दोबारा से वैसी ईद आ जाए, बचपन से लेकर अभी तक कोई भी? देखो, मैंने पहले भी कहा कि जो ईदें हमने अपनी माओ के साथ गुजारे वो ये सारी यादगार है। कोई एक याद हुआ होती है ना जो करती थी। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही मजे की होती है, जो इंसान कहता है वापस आ जाएंगे, किसी भी तरीके से वो याद रहती है, इंसान को भूलती नहीं है। माओ के साथ तो जो टाइम गुजारते हैं वो याद ही रहता है। कोई एक होती है ईद स्पेशल? क्योंकि खास दिन होता है ना, तो मतलब अब तुम कहती हो तो ऐसे कह देता हूँ, ऐसी यादगार तो सारी ही नहीं। एक दफा बाहर के मुल्क से आ रहे थे ड्रामा करके, जी तो ईद जो हमें आई कराची एयरपोर्ट पर, तो मैंने ईद पर आई सुहेल अहमद, अनवर अली और 3-4 एक्टर अब पे पड़ गए। तो आए थे कि बकरे बुकरे अगर खा ले तो अफसोस हुआ, ओ यार ग्रेट है आप। ना वेख्या बकरा ले आउंदे ना दे पकाने पाड़ते देखे। यानी वो एक प्रोसेस जो देख के मन में लड्डू फूटता है, तो कहता है यार मैं चाप खाऊंगा, और बंदा स्ट्रेटजीज बनाता है किस तरह से खाना है। यानी जी आपने कोई इस वो तरह बकरी का वो अफसोसनाक वाक़या- बकरी का उस बकरे को देखना और बकरे का कहना ना आई लव यू, बकरी का नहीं बकरा का ना हुन की टू लेट ये मंजर देखना बिल्कुल वाह। कुछ भी ना देख सके, हाँ, तो बस वो आके पड़ो खा लिया, लेकिन वो मजा नहीं है जो लेकिन वो जैसे टेस्ट कहते हैं हम। असल में तो जो है ना, जैसे अभी भाई को सब कह रहे थे कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जी, अपनी महबूब चीज कुर्बान करना। हाँ, तो अगर आपको बकरे से मोहब्बत ही नहीं हुई, ऊंट से दुम्बे से, आजकल तो ऑनलाइन ही करा देना, हाँ, आजकल बड़ी सारी ऑप्शन आई जो है। पावे बखा देने ने क्या है नहीं ये आप ही के बकरे के हैं। ये आपके बकरे के, तो वो मजा नहीं है। बकरा कुछ दिन रख के उससे प्यार उसको नहला के धुला के फिर उसको गुब्बारे बनना, तो बड्डे पढ़ना, तो झांझना बोनी है, लिपस्टिक लगानी, लिपस्टिक बिंदियां लगानी, क्या बकरा ही करते रहे हो लड़की या- बना दिया उसको। बड़ी ईद का तो यही मजा है ना। हाँ हाँ, बड़ी ईद का ही मजा है। लेकिन दो पहले ईद आप छोटी रखिए ईद ना, पे हम तीसरे अपने लिए दिन शॉपिंग करते हैं, बड़ी ईद पे हम उनके लिए शॉपिंग करते हैं। हाँ और ये एक सिलसिला रहता है। आपका भी कोई ऐसा वाकया? मैं तो तकरीबन कोई 12-13 साल से ना, लिपस्टिक वाली गलती मैं के बकरा ही करते रहे। मैं 12-13 साल से मुल्क में कभी भी छोटी ईद बड़ी ईद या कोई भी त्योहार आता है तो मैं कुदरती यहाँ पे नहीं होती, मैं मुल्क से बाहर होती हूँ। ये पहली ईद है जो छोटी भी यहाँ पे, बड़ी भी ईद यहाँ पे, और मैं कह रही हूँ
फ्लैट आके तो कुलन गया यानी ठीक है, एक इंतजार कर रही हैं वो अपने सिलसिले का। बगदादी साहब, हम जिस तरह आपको अपने काम में देखते हैं, महव रहते हैं, एक सोच आप में है और अपने काम के हवाले से अल्लाह करीम आपको मजीद तरक्की दे। आमीन। ईद वाकई खुशियों का त्योहार है। आप वाकई को ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ भी जिसमें जवाद साहब जिक्र कर रहे हैं, या नहीं जी? मेरी तो दुआ है सभी खुशियों से ईद मनाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जितनी भी ईदें आई हैं खुशी से मनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी ठीक है, खुशियों का सिलसिला तो रहता है। कौकब साहब, आप बाज़ौक हैं और शेर गोई आप समझते हैं इसको बड़ी बारीक बीनी से, तो ईद पर कुछ लिखा हो ऐसा जो वाकई हमें बोटियों की भी याद ताजा कर दे? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कलेजी की भी ਤਨਹਾਈ याद ਚ ताज़ा- ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ऐसा ही है जी। हाँ नहीं, बात तो आपकी ठीक है, और लेकिन ये देख आ लें, गई है, ये देख बकरे पूरी को पूरी पूरी बुक आ गई है बस बकरे को नहीं सुनाना, हाँ, सबको सुनाना है अच्छा, कि शायद उनके दिल में कोई बात उतर जाए, शायद ਜਿਵੇਂ उतर ਸਿਆਸਤਦਾਨ जाए। ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਕਰੇ ਸਮਝ ਗਏ बकरे समझ लो। ਕਰ ਲਓ। हाँ वो नहीं, वो तो अताउल्लाह कासमी साहब कहते हैं कि मेरे अब्बा कहते थे कि सामने वालों को गोभी का फूल ही समझो। तो वो कहते हैं कि एक महफिल में मैं बगैर लिखी तकरीर कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद मुझे तो महसूस हुआ कि लोग मुझे गोभी का फूल समझ रहे हैं। बकरा खरीदना है हाँ, तो डॉलर दिखाइए, वाह वाह वाह, वाह, वाह 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 क्या बात। बकरा खरीदना है तो डॉलर दिखाइए, वाह, साहेब वगरना घर की तरफ लौट जाइए। वाह 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 हकीकत पसंदाना शायरी। बकरा खरीदना है तो डॉलर दिखाइए, साहेब वरना घर की तरफ लौट जाइए। कुर्बानी अब रुपयों में मुमकिन नहीं हुजूर, कुर्बानी अब रुपयों में मुमकिन नहीं हुजूर, मंडी में जाके खैर से धक्के ही खाइए। वाह वाह, क्या बात है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ खरीदना है हजूर तो पट्ठे दिखाइए वरना वापस वापस लौट जाइए। सुना है जी, सुना है आज का बकरा मोबाइल यूज करता है। वाह वाह क्या बात। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह सुना वाह है, बहुत शुक्रिया एनी जी। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ। सुना है आज का बकरा मोबाइल यूज करता है, हाँ, सुनैना काल बकरी तो उसे अब्यूज करता है। अब बकरी की तरफ वक्त उसने मुझे ही देखा है। आप खुद देख रहे थे ना, मैं देखा घबरा उसने गया। सुना है आज का बकरा मोबाइल यूज करता है, सुनैना काल बकरी तो उसे अब्यूज करता है। ये सुबह शाम इमो पर मैसेंजर पर सताता है, ये गाहक और व्यापारी को बहुत कंफ्यूज करता है। क्या कह रहे हैं जी, ये माहौल अब बन चुका है मेरे ख्याल में। यानी जी, अब हम चाहेंगे कि आप ऐसी परफॉर्मेंस दें, देखने वाले भी महसूस हों। हम तो खैर जाहिर है होते हैं और देखने वाले भी बहुत पसंद करते हैं, चूंकि आप फोक की तरफ तवज्जो दे रही हैं आजकल, और चिमटे के साथ गायकी, ये बड़ा एक मुझे अच्छा लगा खातून होने के नाते, एक नए अंदाज से, नए ढंग से आप। ये आपने देखा ही नहीं है। बस हम देखना चाहते हैं, हम क्या देखना बात चाहते कर दी हैं। आपने। ले जी, फिर हो जाए। वेलकम बैक। बड़ा ही उम्दा ट्रैक हमने सुना, आपने भी सुना, एंजॉय भी किया। जवाद साहब, आपकी गुफ्तगू, आपके जनाब गायकी, और आपने तो खैर जी बकरे के एतबार से और ईद उल अजहा के हवाले से बड़ी उम्दा शायरी सुनाई। आपने तो खैर जी ट्रैक से हमें एंटरटेन कर दिया, हमने बड़ा मजा किया। आपने अपने हेयर स्टाइल से हमें बड़ा मुतासर किया है। ओह माय गॉड, ये थैंक यू, ये आपने बड़ी उम्दा एक मुझे राय दी है, लेकिन आपका भी बहुत आला है। मैं हाँ, कहीं वही 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 ना भाई ना ये भाई। है। नहीं, ये मैं जरूर कहूंगा कि गंजे बंदे को बहुत फायदे भी हासिल होते हैं। अच्छा, मतलब है भी कंगी करने की जरूरत ही नहीं है, है जी। किस चीज और गिल्ली टाकी के अंदर के मार लो ही साफ होगी। कौन और कहते कहता हैं, है मेरा महबूब गंजा है? हाँ, वाह वाह। कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है? कभी चांद के सर पर भी बाल हुआ था। और ये बंदे का एक और भी होता है उसामा, कि वो अगर आ भी रहा हो तो लगता है कि जा रहा है। हाँ, ये तो क्या बात क्या, ये तो जवाद वसीम है, हाँ,
तो बिल्कुल है। इनको बालों की कतई जरूरत नहीं है। इनके शनाख्त, इनका चेहरा, इनकी शख्सियत है। क्या अच्छा, बात। आपने चूंकि बड़ी तैयारी ना जी स्पेशल को पहेलियां बनाई हुई हैं, अच्छा। क्यों ना को पहेलियां जी, कुछ जी, हाँ, हाँ, पूछने की start कोशिश करते करें, को हम देखें किस तरह से आपसे स्टार्ट करते हैं, मैं तो पहेलियों में हमेशा हार जाता हूँ। ट्राई करें। ये तो अब आपने झूठ कहा है। नहीं सच्ची मजबूरी देख लोगे। चले कीजिए सर। ना घर के अंदर होती है ना घर के बाहर होती है, लेकिन फिर भी घर के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं बता दूं? तुम्हारी बारी आएगी तो ये पहले इन कोशिश कर। उसामा, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा, ओ हाँ, हम तो पहले बैकग्राउंड म्यूजिक भी देते हैं। डिश करो कर लो। डिश हो गया मेरा। हो गया। अब आप बताएं। हम गा भी आप पे। ये पहेली है। घर के अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, और घर नहीं, ना घर के अंदर होती है ना घर के बाहर होती है, लेकिन घर के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा, वैसे हम मुझे यहाँ लग रहा है हिंट तो दे ही सकते हैं ना? जी जी। हाँ, हाँ, चलें। वो तो हाँ, जब तक आप सोचें हम आपको मदद देंगे, करने मदद के लिए करेंगे हिंट आप। देते हैं। कितने मेरी बीवी के पास नहीं पूछते। बिल्कुल नहीं सर, दोनों कभी सो रहे होंगे कभी ऐसे होंगे। नहीं सर, नहीं। सर खिड़की। ओ इतनी जल्दी इसने बता भी दिया सर जी, ये देखो, क्या आपको बात है? सोचने का कुछ तो मौका हमें नहीं। खपाती। हाँ, कुछ तो हमें चले सताती। आपकी बारी। हाँ, चले बख्ताती साहब देखते हैं ना किस तरह से हाँ, आंसर पकड़ा। ठीक है, दो छिपकलियां दीवार पे चिपकी हुई हैं। उनमें से एक छिपकली ने दूसरी छिपकली को ऐसा क्या कहा कि वो जमीन पे गिर गई? धक्का लगाया, कहा। कहा सोचें बख्ताती साहब, सोचें। डिश डिश डिश। उसने कहा मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो वो एक दूसरे बेहोश हो गई। नहीं। कोई हिंट आप दे कौकब साहब, आपको हिंट देना चाहें? मैं क्या शायरी सुना दें, इस छिपकली को सुना दें। ओहो, एक कि छिपकली होश तो में वो आ- एक साहब दुआ मांग रहे थे ना, अच्छा अच्छा तो कहते कि या अल्लाह मुझे छिपकली बना दे, और बड़े खुशू से कह रहे थे वाह। कि मौला करीम मुझे छिपकली बना दे। तो एक साहब ने कहा यार नमाज पढ़ी है अल्लाह के बंदे, और तू क्या दुआ मांग रहा है, कोई और दुआ मांग, कोई उसकी औलाद छिपकली की। बनने की कोशिश कर तो रहा है। कहता मेरी बीवी चूंकि छिपकली से डरती है लिहाजा मैं तो यही चाहूंगा। फिर होना जो वही छुपकली जड़ी गिर गई। हाँ, वही है। अब मेरे ख्याल में बताओ, जवाब बताओ। उसने कहा हैंड्स अप, और वो गिर गई। और वो गिर गई। ये इनकी दानाई है, इन्होंने इस तरह के सवाल बनाए। मेरे क्या ख्याल में बात। यहाँ में मार पड़ेगी, अभी इधर आते हैं। इनसे ठीक है, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया? कहाँ लहराया क्या? हाँ। मेरे ख्याल में तो वो एक खातून ने लहराया था, और असेंबली में लियाकत अली खान ने लहराया था। नहीं। तारीखी हवाले से बात आपकी दुरुस्त, लेकिन यहाँ जरा आप जहन लड़ाएं, छोड़ दें आप हिस्ट्री अच्छा, को, अच्छा। शेर गोई को, अच्छा, और दोबारा नसर निगारी को। फिर? पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? है जो बांस पे लहरा। करीब करीब है। करीब करीब है। वाह वाह, तो ठीक है, वही बात है। समझ लो, आप जी समझ लो। हवा में। हवा में हवा लहराया में। गया ना, देखिए झंडा लहराया जाता वाह, हवा को रोकने वालों हवा तो आएगी, नजर ना आएगी सूरत सदा तो आएगी। वाह 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 तुम अभी से गुम किए बैठे हो होशो आवाज, ये इब्तदा है अभी इंतहा तो आएगी। वाह वाह। और सारा की पहेली का जवाब ना दिया तो शर्म तो आया। और वो आ रही है। चले अब आपकी बारी। वो कौन सा बैग है जिसमें कपड़े नहीं डाल सकते? वो बन बैग, जिसमें बैठते हैं, बन बैग। करेक्ट। पहुंच गई यार। ये क्लास Clap सर जी मेरे लिए, कहते हो बंद है। पहली अटेम्प्ट में बड़ा बेहतरीन। मेरे ख्याल में अब फिर जवाब साहब जी ओके। और शरीर मिजाज है जवाब साहब, कोशिश करें। वो कौन सी चीज है जिसको जितना मर्जी मार लो, टांग मार लो, वो माइंड नहीं करती, ना गुस्सा करती, ना नाराज होती है? चीज है। अब आप ये ना कहिएगा मेरी बीवी की टांगे कि जितने मर्जी तो मालूम होने बुरा बनाती। नहीं वो कहते मारो, मारनी है, दबानी अच्छा, मारनी है। हाँ। मारनी। जितना मर्जी मारो, जो मर्जी करो। हाँ। मेरा ख्याल है मश्क सर जी, मश्क वो जिस चीज पे वो पामंद ही है कि बीवी जो मर्जी करो। जो मर्जी कह रहा है मैं नहीं सर, सोचिए, क्योंकि जानदार है, जाहिर है तो जानदार नहीं है। बल्कि जानदार नहीं है, क्योंकि खावन तो जानदार है। बेजान चीज है जिस पर ये तशद्दुद की बात हाँ। करें, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कभी ना कभी कभी नहीं होता है, आता। लेकिन इस सूरत में नहीं। सर वो पंचिंग बैग नहीं होता, जो पंच बैग होता है, नहीं, फुटबॉल।
एक ही बात है, वो किक भी करना है ना, हाँ, किक तो उसी को करना नहीं है। लेकिन वो वो कुछ भी पहुंच गई ठीक है, हैं, ठीक है, आंसर वो ऑलरेडी just आप like मेरे ख्याल copy में paste. खामोश हो जाए, आपको सारे जवाब आते हैं। नहीं मुझे नहीं आते, जब मेरी बारी आएगी मुझे नहीं आने। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, फुटबॉल माइंड नहीं करता ते क्रिकेट दा बॉल वो माइंड करता है। ये सारी भी वो स्पेसिफिकली उसको किक पंचे करते बैग हैं में ना, ज्यादा उसको तो किक करके खेलते हैं ना, उसको तो काम ही है किक खाना। जो उधर करी दिए मार मार कर गेंद फिर वो रिटायर्ड हेड हो जाता है। खैर दासी साहब इंतजार खैर, करें सवाल ठीक का है, आपके। ठीक है, ओके। बगदादी साहब जने फटाफट मैंने सवाल करो। फटाफट हारा। अब आपके, मैं करूं जी? जी। बल्कि आप ये रखें ना कार्ड, ये सवाल आप कीजिए। ओके, कर लो कर लो कर लो, वो शुक्रिया, इंतजार कर आपको रहे हैं। भूल गया मेरा सवाल। नहीं मिल गया। कर ले कर ले कर ले कर ले। यहाँ से पूछो बगदाद हाँ, कितनी मिल दूर है? आपके अम्मी के भाई के बहनोई आपकी क्या लगे? आपकी अम्मी के भाई, भाई मामा, आपका मामा, मामा मामे आप का। दिल में- नहीं ना, दिल में फिर है ना, उनको सोचने यार दो। मैं समझा रही हूँ एक कोशिश। मामू, नहीं सोच दोबारा ले एक बार, दोबारा सोच ले, हाँ। आपकी अम्मी के भाई के बहनोई। अब्बा, अब्बा तुम्हारा। आपने भी बता दिया। आप क्यों बताते और मैंने तहमी हिंट दिया था, मुझे नहीं पता। आपने तो रट्टा लगाया। चलो ये मेरी हो गई, मैंने पूछ ली। हमें भी मौका ये दे। जीतनी है। ये जीतने इनसे पूछी है वो, क्योंकि वो मिस हो है। जाए है ना, और सवाल पूछ दो कि तुम्हारी नानी की बेटी के जो मुझे सवाल आए वो पूछे। शोहर मुझे ना आए का वो पूछे। चलें ठीक है। मुझे वो सही कहा है। और भी चाहिए। ये लीजिए रैपिड फायर का रैपिड फायर पे चले थे। मैं ठीक देखिए है। सारे क्यू कार्ड्स तो मेरे पास हैं। आपने सारे मुझे दे दिए। चलें 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 कीजिए। ठीक है, रैपिड फायर टाइप की क्वेश्चन है। अगर आपको वजीर आजम साहब को कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे अभी फौरन? उसको यही बोलो, खुदा का नाम ले, ये कोरोना वगैरह तो खत्म हो चुकी है। हाँ। तो सभी के काम चलने दे, नहीं आप उनसे को चिट्टा चोला। क्योंकि हम लोगों ने उनको उनके तराने भी गाए थे, लेकिन आज हम लोग मर रहे हैं, शोबज वाले लोग हम मर रहे हैं। सभी के काम चल रहे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा। है फटाफट कर और जान दे यार बस। अच्छा कौकब साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं गोश्त की बात बहुत ज्यादा होती है, मीठे की तरफ अब आ जाते हैं। मीठे में कौन सी ऐसी डिश है जो लोगों को भी पसंद आ सकती है? आपको स्पेशली कौन सी पसंद है? नहीं, मुझे तो हमेशा से देखें जी कि फिरनी, खीर, शीर खुरमा, शाही टुकड़े, ये सारा कुछ हमारे घर में बनता था। अच्छा। जैसे उन्होंने फरमाया, मेरी वालिदा, हाँ। फिर उसके बाद मेरी बहनें और अब मेरी अहलिया जो है, तो ये मीठे हमारे रवायती हैं। और छोटी बारकेफ कहते हैं मीठी ईद होती है, लेकिन ईद उल अज़हा पे मीठा खाने का अपने एक तरंग है, क्योंकि आप खा रहे होते हैं गोश्त, नमकीन, ये वो कबाब, ये वो, तो जब आप फिर मीठे का एक चम्मच ले रहे होते हैं तो उसके तो फिर असरात भी बड़े शानदार होते हैं। और आपने बात की है तो अब ये है कि क्योंकि गोश्त खा कर आए तो दिल चाह रहा है कि अब आपके चैनल से कुछ मीठा खा के ठीक है सर, ये बताएं कि वो कौन सी कोई एक चीज, कोई हैबिट, कुछ भी जिसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं होती आपकी? कुछ भी हो सकता है, अच्छा मेरी अपनी, आपकी अपनी। अच्छा जैन कहा कि बकरे को टोटना खाओ। नहीं कुछ भी, मतलब जिसके क्या बगैर आप हो कहते हैं कि घर में? मेरी ईद ये होगी तो होगी, वरना ईद नहीं है। हाँ उसमें ये होता या है। दो चार रोजरियां ना धोएं, हाँ यस, आप सही कह रहे हैं। या सिरी भूनते हुए कुछ चिंगारी ना कपड़ों पे पड़े। कोई तो ऐसी बात। वैसे जवाब साहब मैं देख रहा हूँ एक्सपोजर है आपको, बड़ी डिटेल में आप हर एक एक अज़ा बारे बारीक बीनी से बता रहे हैं हमें। आप चले मीठे की, वो तो उनसे तो हम जान चुके हैं, मीठे पर आपकी क्या राय है ईद के एतबार से? इस ईद पे जी इस ईद पे मीठा जी, देखिए साथ जुज है ना ये तो, नमकीन और मीठा। हाँ, छोटी ईद पर तो होती है ना सेवियां। हाँ सवैयां बहुत अच्छी, शानदार। इस ईद पे वही जो है ना वो गुड़ वाले चावल, हाँ बमा सौंफ वाले। सौंफ वाले, वो मजा दे। कस्टर्ड वगैरह मजा करता है। अच्छा, यानी ये एक ठीक है, मीठा है और इसका फिर एक लुत्फ अलग होता है। यानी जी खाने में आप शेर हैं, हमने देख लिया, आपने खुद ही कह दिया। मीठे में किस ऐसी शय पर आप कहती हैं बस सब छोड़ दें, मैं इसी को नहीं छोड़ना, हमलावर हो जाती हैं? क्रीम करी मैं वो जहाँ कहीं नजर आ जाए, कहीं भी मैं कहती हूँ खाना छोड़ दो। हाँ। इसको केक को पूरे मेरे सामने रख दो। ओए कौकब साहब, जिस तरह आप ढूंढ रहे हैं ना, मुझे महसूस हो रहा है आपको मीठे के हवाले से कोई आमद हो रही है। नहीं, या मीठे- मीठे के हवाले, ईद के हवाले से चले। मीठा तो क्या है कि जैसे उन्होंने फरमाया
آپ کی ابھی شادی نہیں اسامہ، تو کہتے ہیں تھے کہ جس نے یہ پھل کھایا وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی یعنی پچھتایا. کس مناسبت سے آپ نے کچھ تحریر تو کیا؟ میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں، میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں. میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں شوہر ہو کے اتنا ڈر رہا ہوں. نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، ہاں، نہ جیلر ہے نہ تھانے دار. نہ تھانے دار وہ، مگر گھٹ گھٹ کے دیکھو مر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور جو بات کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہے تو بکرے کے تناظر میں کہ میرا بکرا آئی ایم ایف کو بھاتا ہے، میرا بکرا آئی ایم ایف کو بھاتا ہے، ورلڈ بینک بھی بھاگ بھاگ کے آتا ہے، اور پہلے چارے پر بھی گزارا کرتا تھا، پہلے چارے پر بھی گزارا کرتا تھا، اب یہ چینی آٹا ڈالر کھاتا ہے. واہ 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 واہ، تو کھاتا ہے نا. اوئے ہوئے، کیا معاشی بکرا دکھایا انہوں نے. ہائے ہائے. اور رکھاؤ ہے معاشی. ویسے شادی کے حوالے سے تو میری یہ بڑی خواہش تھی کہ بیوی ملے کچھ ایسی جو ہر سو بہار دے. ہائے ہائے. جی ملے. بیوی ملے کچھ ایسی جو ہر سو بہار دے، جی جی. میکے سے لائے اتنا کہ مجھ کو سنوار دے، اور سالہ ہو میرا ایسا کہ ہو جس کو مجھ پہ ناز، جو کچھ ہو اس کے پاس وہ سب مجھ پہ وار دے. اور بیوی کو دے رہا تھا اسامہ، جی جی جی. بیوی کو دے رہا تھا جی. میں گن گن کے کچھ روپے، بیوی کو دے رہا تھا میں گن گن کے کچھ روپے، کہتی ہے خرچ دینا ہے تو بے شمار دے. اور بیوی کی بات نہ مانے تو اٹھا کے جوتی مار دے. جوتے، اور آخر میں کہ تو چارمنگ ہے. واہ. وہ خوشامد والی بات کہ میں نے کہا کہ چلے شاید کوئی تعریفی جملے کہنے سے بات بن جائے. تو چارمنگ ہے، کیوٹ ہے، آؤٹ کلاس ہے. تو چارمنگ ہے، کیوٹ ہے، آؤٹ کلاس ہے. تو چارمنگ ہے، آؤٹ کلاس. تو کہتی ہے کہ کمنٹس اس طرح کے مجھے بار بار دے. بڑی انہوں نے کیفیت عجیب کر دی ہے. میں چاہتا ہوں عید کے رنگ ہوں وہ جو اس میں بھنگڑا بھی ہوتا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں. ویسے کورونا نے عید کو نظر لگا دی ہے تو اینی جی اب آپ کا ٹریک ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اب ہماری ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچی ہے. لاہور رنگ تو دیکھتے رہیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن ٹریک سنتے جائیں. Stay safe, stay